A very good afternoon to all students. My today's topic is from CT Unit 6, Principles of Education and Teaching Learning Process. Okay, so my today's objectives are to define education, to explain aims of education, to define philosophy of education, and to explain classification of educational philosophy. Okay, so first is education. So meaning of education, the term education has its origin in the Latin words educo, educare and educare. So in educo, e means out of, and educo means I lead. So according to this view, education means I lead out darkness into brightness. Then definition of education according to Chanakya, education means the training for the country and love for the nation. And according to Mahatma Gandhi, education is an all-round drawing out of the best in child and man, that is the mind, body, mind and spirit. Then in context of nursing education, the nursing education is a professional education which is consciously and systematically planned and implemented through instruction and discipline and aims the harmonious development of the physical, intellectual, social, spiritual abilities of the student, ठीक है, in order to render professional nursing care to people of all ages in all phases of health and illness and in a variety of setting and in the best or highest possible manner. Then education has its aims. It may be individual aim, social aim, spiritual aim, vocational aim, cultural aim, moral aim, intellectual aim, and aims given by different commissions. Okay, so let's see what is the individual aim of education. For the individual, the aim of education is to develop a whole individual as a human being, ठीक है, and to develop spiritual development, cultural development, harmonious development, and it also promote positive physical development, development of a right personality, and development of good citizenship, development of good leadership, emotional and mental development. ठीक है, ये सारे aims है individual aim के of education. Then second is social aim. तो सोशल एम एजुकेशन का ये है कि एजुकेशन क्या करती है, किसी भी पर्सन को एक सोसाइटी का यूज़फुल मेंबर बनने में हेल्प करती है, ठीक है, जिससे कि वो अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के इरिस्पेक्टिव भी अपने सोसाइटी का यूज़फुल मेंबर बन सके. एंड वोकेशनल हेल्प करती है चाइल्ड को कि वो अपनी लाइवलीहुड को अर्न करे, ठीक है, जिससे वो प्रोडक्टिव हो सोसाइटी में. अगर वो सोसाइटी में खुद को प्रोडक्टिव लाइफ वो लीड कर सकता है, ठीक है. इंटेलेक्चुअल एम, एजुकेशन का इंटेलेक्चुअल एम ये है कि वो किसी भी चाइल्ड के इंटेलिजेंस को डेवलप करती है, ठीक है, जिससे चाइल्ड के अंदर कॉन्फिडेंस आता है. देन कल्चरल एम एजुकेशन हेल्प करती है किसी भी पर्सन को कल्चरल और सिविलाइज्ड बनने में, ठीक है, उसके अंदर अपनी कल्चर के लिए एस्थेटिक सेंस और रिस्पेक्ट डेवलप होती है. मोरल एम से एजुकेशन से पर्सन के अंदर ऑनेस्टी, लॉयल्टी, टॉलरेंस, जस्टिस, सेल्फ कंट्रोल और सिंसियरिटी प्रमोट होती है. एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में किसी भी पर्सन के अंदर एजुकेशन से ह्यूमन वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड हैबिट्स डेवलप होती हैं जो उसको एक डिज़ायरेबल कैरेक्टर को उसके अंदर डेवलप करती है, ठीक है. तो ये इस एम्स है एजुकेशंस के: इंडिविजुअल एम, सोशल एम, वोकेशनल एम, इंटेलेक्चुअल एम, एंड कल्चरल एम, मोरल एम एंड स्पिरिचुअल एम्स. एंड नाउ वी विल सी द फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, ठीक है. तो फर्स्ट इज व्हाट इज़ फिलोसॉफी. सो फिलोसॉफी इज़ अ ग्रीक वर्ड फिलोसोफिया which is made up of two words, filio and sophia. Here the filio means love and sophia means wisdom. So literally the meaning of philosophy is love of wisdom or passion of learning, ठीक है. सो फिलोसॉफी एक सर्च होती है जिसमें हम क्या करते हैं, व्यू ऑफ नेचर है, नेचर के सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं उनका एक एक्सप्लेनेशन जो होता है फिलोसॉफी के अंदर होता है, ठीक है. हमारे आसपास की चीज़ें क्या है, वो कैसे डेवलप हुई है, उसके पीछे क्या रीज़न है, अगर कोई सो कंप्लीट विजडम जो होती है. किसी द नेक्स्ट थिंग इज़ फिलोसॉफी का एजुकेशन में क्या रोल है, क्यों फिलोसॉफी को एजुकेशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है. सो फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन का है मतलब मैंने आपको बताया कि जैसे इसमें
आंसर्स हैं ऑफ क्वेश्चंस के, हमारे रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। सो एजुकेशन से रिलेटेड भी इसमें आंसर्स हैं फिलोसोफर्स के, जैसे स्कूलिंग क्या है, टीचर्स का रोल क्या है स्टूडेंट्स के लिए, एंड व्हाट शुड बी टॉट एंड बाय व्हाट मेथड्स, ठीक है। सो ये सब आंसर हमें फ़िलोसॉफी में मिल सकते हैं, ठीक है। तो थ्रू फ़िलोसॉफीज़ हम स्टूडेंट्स को बेस्ट मेथड से और बेस्ट कंटेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एजुकेशन में इसलिए रोल है। सो फिलोसॉफीज़ टू क्लासिफिकेशन ऑफ फिलोसॉफीज़ का मेनली दो फिलोसॉफीज़ हैं यहाँ पे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न फिलोसॉफीज़, ठीक है। सो ट्रेडिशनल में आपकी नेचुरलिज्म फिलोसॉफी है, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म। और मॉडर्न फिलोसॉफीज़ में है पेरिनलिज्म, एसेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, रिकन्स्ट्रक्शनिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म। सो फर्स्ट जो ट्रेडिशनल फिलोसॉफी है उसमें है फिलोसॉफी ऑफ रियलिज्म। सो फिलोसॉफी ऑफ रियलिज्म के फादर हैं अरिस्टोटल को माना जाता है, ठीक है। सो इनके अकॉर्डिंग क्या है, हमें किसी भी स्टूडेंट्स को उसके तो ये फ़िलोसॉफी ये कहती है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है तो हमें सबसे पहले उसके अल्टीमेट फॉर्म को, जिस फॉर्म में वो नेचर में है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ए रोज़ है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था, अ रोज़ है वो एग्जिस्ट करता है वेदर हमें उस पता हो ना हो, ठीक है, कि रोज़ है। लेकिन हमारे माइंड में क्या, अ रोज़ कैन एग्जिस्ट इन द माइंड विदाउट बीइंग फिजिकली प्रेजेंट, ठीक है। अगर हमारे सामने रोज़ नहीं है लेकिन फिर भी हमारे माइंड में इमेज है कि रोज़ होता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहाँ पे द रोज शेयर्स प्रॉपर्टीज विद ऑल अदर रोजेस एंड फ्लावर्स, सो ऑल्दो वन रोज में बी रेड एंड अदर पीच कलर, ठीक है। कि हमें पता है कि रोज़ एग्जिस्ट करता है और उसके कलर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, मीन्स कि यहाँ पे तो इन्होंने ये इनका ये बिलीव था कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें उसके अल्टीमेट फॉर्म को, जिस फॉर्म में वो है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो मीन्स कि इस फिलोसॉफी का बिलीफ ये है कि स्टूडेंट्स को अपने लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि करना, जिससे वो जो चीज़ रियलिटी में है उसको परसीव कर सकें, ठीक है। यहाँ पे करिकुलम जो होता है वो मेनली वो इस टाइप का होता है कि जिससे स्टूडेंट्स के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ डेवलप हो, ठीक है। टीचिंग मेथड्स यहाँ पे मेनली डेमोस्ट्रेशन और रेसिटेशन का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ये फ़िलोसॉफी ये भी कहती है कि स्टूडेंट्स को उनके जो नेचुरल वर्ल्ड है वहाँ पे वो ज़्यादा बेटर लर्न कर सकते हैं। जैसे जैसे फिज़िक्स में बहुत सारी फिलोसॉफी होती हैं, लॉज होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की एक लॉ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वो मेनली क्लासेस में पढ़ाई जाती है कि हाँ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसोफर कि हमें स्टूडेंट्स को हम उसको प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स को लर्न करा सकते हैं कि हमें वो चीज़ उनको पहले ना बताएं और उनको हम जैसे पेड़ के पास लेके जा रहे हैं और कोई चीज़ हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो खुद ही अपने लॉजिक का यूज़ करेंगे कि हाँ, ये चीज़ क्यों गिरी थी, देन वो उसको आंसर क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद फिर हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसॉफी। देन सेकंड आती है नेचुरलिज्म, फिलोसॉफी ऑफ नेचुरलिज्म। सो फिलोसॉफी ऑफ नेचुरलिज्म भी सेम थिंग है, ये भी ये बोलती है, इसका मेन एम्फेसिस है फिजिकल वर्ल्ड पे, ठीक है। कि कोई हमें कि स्टूडेंट्स बेटर लर्न कर सकते हैं अगर वो अपने फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को लर्न करें तो, ठीक है। जैसे इस नेचुरलिज्म ये बोलती है कि हमें चाइल्ड को पूरी फ्रीडम देनी है, ठीक है, किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। तो अगर हम मैक्सिमम फ्रीडम देंगे तो वो खुद से ही लर्न करेगा, ठीक है। उसके अंदर की जो एजुकेशन होती है वो इवॉल्व होगी, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन होगा, सेल्फ एक्सप्रेशन होगा, उसे सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये सब डेवलप होगा उसके अंदर। यहाँ पे करिकुलम जो होता है, यहाँ पे एवरी चाइल्ड इज़ गिवन द राइट टू डिटरमाइन हिज ओन करिकुलम एंड ही इज़ एक्सपेक्ट टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंसेस। सो मेनली यहाँ पे इस फ़िलोसॉफी के व्यू के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर, नेचर स्टडी, गार्डनिंग, ये सब्जेक्ट्स उसके लिए बेस्ट है अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसॉफी, ठीक है।
देन नेक्स्ट फिलोसफी आती है फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। सो प्लेटो को फादर ऑफ आइडियलिज्म बोला जाता है। तो ये इन्होंने अपनी जो फिलोसफी दी थी उसके पीछे उसमें इन्होंने कुछ स्टेप्स बनाए थे किसी भी एजुकेशन की प्रोसेस के। डिवाइड किया इन्होंने 4-5 स्टेजेस में। जैसे एज 7 to 18 वो फेज़ होता है जिसमें स्टूडेंट को हमें जनरल मैथमेटिक्स से म्यूज़िक एस्ट्रोनॉमी वो बेटर लर्न कर सकता है। 18 to 20 में उसको फिज़िकल ट्रेनिंग दी जा सकती है। 20 से 30 में वो लॉजिक्स मैथमेटिक्स इसका अच्छे से यूज़ कर सकता है। 30 to 50 में प्रैक्टिस ऑफ डायलिटिक्स इन वेरियस ऑफिशियल अफेयर्स इन द स्टेट एंड देन आफ्टर 50 प्लस a person can become a philosopher. So means according to Plato कि हर स्टेप में पर्सन को डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जिससे उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ डेवलप होंगी। देन यहाँ पे जो रोल ऑफ टीचर होता है वो एक रोल मॉडल होता है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे टीचर का रोल होता है कि लर्निंग एक्टिविटीज़ को यहाँ पे स्टूडेंट्स में करवाना जिससे कि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। सो मेथड ऑफ टीचिंग यहाँ पे है लेक्चर मेथड यहाँ पे बेस्ट होती है, जिससे टीचर लेक्चर डिलीवर करता है, स्टूडेंट लिसन करते हैं और देन दे कैन आस्क द क्वेश्चंस अबाउट द टॉपिक। सो लेकिन ये मेथड एलिमेंट्री लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होती है बिकॉज दे आर नॉट हैबिचुअल फॉर लिसनिंग लॉन्ग टाइम। देन नेक्स्ट थ्योरी इज़ प्रैग्मेटिज्म। सो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी ये बोलती है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम को एक प्रैक्टिकल वे में और सेंसिबल वे में सॉल्व करना चाहिए रेदर देन बाय फिक्स आइडियाज़। ठीक है। जैसे तो इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को ऐसे हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है जिससे कि वो प्रैक्टिकली भी किसी चीज़ को लर्न करें और ना कि उनके अंदर एक फिक्स्ड आइडियाज़ हम बैठा दें, ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें हमें प्रैक्टिकल वे में लर्न करने को सीखने दें। जैसे कि एक एग्जांपल है, ठीक है, अगर अर्बन एरिया वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो अर्बन एरिया में उनके लिए एग्रीकल्चर वो नहीं देखते हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इन रैदर देन जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जैसे फार्मिंग वाले स्टूडेंट है, ठीक है, मोस्टली जिनके फैमिलीज फार्मर्स हैं, ठीक है, तो मेनली वो बेटर लर्न कर सकते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स को। तो ये फिलोसफी यही बोलती है कि हमें स्टूडेंट्स को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है जिससे वो रियलिटी में एक्सपीरियंस करें किसी भी चीज़ को और उनके अंदर ग्रोथ हो, ठीक है, उस फील्ड से रिलेटेड। यहाँ पे जो टीचिंग मेथड्स होती है मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग प्रोजेक्ट्स, ऑफन स्टूडेंट्स को हम ग्रुप में असाइन करते हैं किसी भी वर्क को जिससे उसके अंदर प्रैक्टिकली एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। ठीक है। और यहाँ पे करिकुलम होता है शुड टॉट स्टूडेंट्स थिंक दैट आर प्रैक्टिकल फॉर लाइफ एंड इंक्रीज देम टू ग्रो इनटू बेटर पीपल। देन नेक्स्ट इज़ मॉडर्न फिलोसफी। सो मॉडर्न फिलोसफीज़ में फर्स्ट फिलोसफी है पेरेनियलिज्म। सो पेरेनियलिज्म का मीनिंग होता है कि दैट लास्ट फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है। सो इट इज़ अ आइडिया दैट स्कूल करिकुलम शुड फोकस ऑन विच इज़ ओवरलास्टिंग टीचिंग थिंग्स दैट आर एप्लीकेबल टू मैनी जनरेशन। कोई भी चीज़ अभी जो टीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स को वो आगे जनरेशन्स के लिए भी यूज़फुल हो, ये फिलोसफी ये बोलती है। ठीक है। मेनली ये थ्योरी का व्यू इसमें भी एम्फेसाइज करती है कि अगर हम किसी जो कंटेंट स्टूडेंट्स को पहले से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वही पढ़ाया जाए, कोई न्यू बीच में ऐड ना किया जाए। ठीक है। जिससे कि वो बेटर लर्न कर सकते हैं। ये फिलोसफी ये जो बोलती है। यहाँ पे जो रोल होता है टीचर का, दैट इज़ टीचर मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड मास्टर ऑफ ही सब्जेक्ट सो दैट ही कैन हेल्प ए स्टूडेंट टू डेवलप द पावर टू थिंक डीपली, एनालिटिकली, फ्लेक्सिबली एंड इमेजिनेटिवली। ठीक है। देन नेक्स्ट इज फिलोसफी इज एसेंशियलिज्म। तो फिलोसफी ऑफ एसेंशियलिज्म एक आइडिया है दैट पीपल एंड थिंग्स हैव नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक दैट आर इनहेरेंट एंड अनचेंजिंग। ठीक है। ये फिलोसफी ये बोलती है कि किसी भी पर्सन के अंदर कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती हैं जो उसको उसके फादर से पेरेंट्स से मिलती हैं। ठीक है। तो मीन्स वो अनचेंजिंग है। तो हमें स्टूडेंट्स को उनके इनहेरेंट क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग ही टीच करना है। ठीक है। जैसे कुछ सोसाइटी के बिलीव्स होते हैं, ठीक है, कि बॉयज़ आर गुड्स इन मैथ एंड साइंस एंड देन गर्ल्स आर गुड इन हिस्ट्री एंड आर्ट्स, ऑल दी सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो सोसाइटी के बिलीव्स होता है जिसके अकॉर्डिंग वो
एक उनके अंदर एक फिक्स आइडियाज़ बन जाते हैं, ठीक है, कि बॉयज़ मैथ्स में ही सही हैं और गर्ल्स आर्ट्स में ही सही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो बॉयज़ को मैथ्स और साइंस ज़्यादा पढ़ाते हैं और गर्ल्स को नहीं। तो इससे क्या होता है कि बॉयज़ का डेवलप तो मैथ्स और साइंस में अच्छे हो जाते हैं, लेकिन गर्ल्स नहीं हो पाती हैं। क्योंकि उन्हें वो पढ़ाया ही नहीं जाता है, ठीक है। तो मीन्स एसेंशियली हम यही बोलते हैं कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स के अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनको टीच करना है, ठीक है। जैसे तो इस फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग जो रिकमेंडेड सब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए वो हैं इंग्लिश, मैथ, नेचुरल साइंस, हिस्ट्री और फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है स्टूडेंट का। यहाँ पे टीचर का जो रोल है वो मास्टर ऑफ सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, रोल मॉडल होना चाहिए लर्नर्स के लिए, एंड हाई लेवल ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए एंड कंट्रोल ओवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे जो एसेंशियलिज्म बिलीव्स करते हैं रिजिड डिसिप्लिन में एंड डिवोटेड हार्ड वर्क ऑफ लर्नर्स इन हिज स्टडीज़। देन नेक्स्ट इज़ रिकन्स्ट्रक्शनिज्म। फिलोसॉफी ऑफ रिकन्स्ट्रक्शनिज्म का ये बिलीव है कि हमें कि किसी भी एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करना है और रीस्ट्रक्चर करना है, जिससे कि वो सोशल कल्चरल चेंज लाएं कम्युनिटी में और सोसाइटी में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसॉफी the subject content must be oriented toward aspects of new changes expected social, economic, political disciplines such as sociology, economic science and technology। तो ये फिलोसॉफी बोलती है कि जैसे सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को भी ऑर्गेनाइज करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। जैसे इस फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है, जिससे वो न्यू चेंजेस ला सकें सोसाइटी में, अपनी एजुकेशन सिस्टम में। सो रोल ऑफ टीचर यहाँ पे ये इज़ टू टेक द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अलॉन्ग विद स्टूडेंट मस्ट बिकम द एजेंट टू इम्प्रूव सोसाइटी। द नेक्स्ट लास्ट फिलोसॉफी इज़ फिलोसॉफी ऑफ प्रोग्रेसिविज्म, ठीक है। सो फिलोसॉफी ऑफ प्रोग्रेसिविज्म believes that education should focus on the whole child rather than on the content, ठीक है। तो इस फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस पहले स्टूडेंट अपने कंटेंट को हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, rather than हमें फोकस करना है किस पे, होल चाइल्ड पे, ठीक है। जैसे स्कूल के एक स्टूडेंट को कोई मैथ्स की क्लास में प्रॉब्लम है, ठीक है, कॉमन फ्रैक्शंस में, जैसे मैं सब्सट्रैक्शन, एडिशन में, डिवीज़न में, और तो हम मीन्स कि इस फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग हमें कंटेंट को तब तक आगे नहीं बढ़ाना है जब तक कि उस सिंगल इंडिविजुअल चाइल्ड की हम प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें, ठीक है। जब तक उसको बेसिक फ्रैक्शंस नहीं आते तब तक हम टॉपिक को आगे नहीं कर सकते। तो ये फिलोसॉफी बिलीव करती है कि चिल्ड्रन शुड एक्सपीरियंस डेमोक्रेसी इन स्कूल टू मेक दैम बेटर सिटीजन्स, ठीक है। कि हमें साथ में ही फिलोसॉफी ये भी बोलती है कि हमें स्टूडेंट्स को स्कूल में ही कुछ ऐसे डेमोक्रेसी को एक्सपीरियंस कराना है, ठीक है। जैसे डेमोक्रेसी से रिलेटेड टॉपिक्स हम उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में, जैसे राइट्स, ह्यूमन राइट्स एंड द रिलेटेड लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं। अगर वो स्कूलिंग में ही हम उनके चैप्टर्स में ऐड करेंगे तो फिर वो जब सोसाइटी के एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर होंगे तो उनको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो करिकुलम इन अ प्रोग्रेसिविस्ट स्कूल स्टूडेंट्स आर एक्टिवली लर्न करते हैं, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड डेवलप सोशल क्वालिटीज़ जैसे कॉपरेशन, टॉलरेंस, उनके अंदर ये डेवलप होता है। सो मेथड ऑफ एजुकेशन यहाँ पे है कि जैसे क्लासरूम मेथड होता है सेम है, और उनको स्टूडेंट्स को ग्रुप में हम प्रोजेक्ट्स को असाइन करते हैं, ठीक है। और रोल ऑफ टीचर यहाँ पे एज अ गाइड यहाँ पे टीचर का रोल होता है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लीडर फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़। इन प्रोग्रेसिविज्म क्लासरूम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ विद इन ईच चाइल्ड, ठीक है। तो प्रोग्रेसिविज्म इज़ अ मॉडर्न philosophy of education. So that was all about philosophy of education. So as I told you, we have two kinds of philosophy, traditional and modern. So in traditional we have realism, naturalism, idealism and pragmatism, and in modern philosophies first is perennialism, existentialism, essentialism and reconstructionism, and last one is progressivism. Thank you.